I was talking about the foundation for the healing and deliverance ministry. तो चंगाई और छुटकारा के लिए मैं कल नींव डाल रहा था. So then I spoke about the creation and the fall. उसके बाद में मैंने सृष्टि के बारे में बताया और कैसे मनुष्य गिरा वो बताया. And I told you about the three compartments, three realms. और मैंने 3 क्षेत्रों के बारे में सिखाया. God created the heavens and the earth परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण by किया himself for himself. और अपने लिए है और उन्होंने खुद बनाया. And we saw the second realm, the spiritual realm, where the angels were there. One of the angel by name Lucifer, he sinned against God. He was rebelled against God. He was thrown out from the heaven. फिर आध्यात्मिक क्षेत्र को हमने देखा जहाँ पे लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करके पाप किया और फिर वो गिर गया. Then we saw the earth realm, फिर हमने पृथ्वी के क्षेत्र को where देखा God created man जहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को रचा to have the dominion over the earth, ताकि वो पूरे पृथ्वी पर प्रभुता करे, so that he can have the authority over everything. ताकि सब चीजों पर वो अधिकार चलाए. But the problem was man cooperated with the sin, or cooperated with Satan. समस्या ये हुई कि मनुष्य पाप के साथ में सहवासी हुआ. And and he cooperated with Satan. और शैतान के साथ में वो सहवासी He हो गया. loses his dominion and authority. और उसके बाद वो अपने प्रभुता को और अधिकार को खोता So है. what did we learn yesterday? तो कल हमने सीखा क्या? A sinful man opens the door for the kingdom of Satan. देखो एक व्यक्ति जो पाप करता है वो शैतान के राज्य के लिए दरवाजा And then खोलता this है. person comes under the spiritual captivity. फिर वो एक आत्मिक कब्जे में आ जाता And he है comes under the captivity of brokenness. और वो टूटेपन के कब्जे में आता He है. comes under the captivity of sickness. बीमारी के कब्जे में आ He जाता है. comes under the demonic oppression. दुष्ट दबाव में वो आ जाता है. And then we saw the solutions. और फिर हमने देखा उसके उपाय भी. God has a rescue plan. प्रभु की योजना है छुटकारा And देने का, बचाने का. God wants to rescue man and restore the relationship between him and man and God. तो परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए जो है और बचाना चाहते हैं और मनुष्य को फिर से वही रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, He पुनर्स्थापित wants to करना. have the restoration in relationship. वो रिश्ते में फिर से पुनर्स्थापना करना So how चाहते can हैं. it be possible? तो कैसे संभव It था is ये? only possible God became human in the name of Jesus, who became sinless. और ये वो एक ही चीज से संभव था कि परमेश्वर मनुष्य का रूप यानी यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आए और हमें पाप से And छुड़ाया. also we see that Jesus, born through the Adam line, he was the only person who was sinless. हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेले जो आदम के वंश से जो जन्म लेने के बावजूद पाप रहित थे. Then we saw how Jesus of Nazareth was anointed by the Holy Spirit to heal the brokenhearted, to set the captives free, and to heal the blind. तो फिर हमने देखा कि यीशु नसरी का कैसे अभिषेक किया गया था कि बंदियों को आजाद करने के लिए और दुष्ट जो लोग बंधन से जकड़े हुए थे उन्हें आजाद करने And के also लिए. Bible says Jesus paid the penalty to deliver us. और पवित्र शास्त्र ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें छुटकारा देने के लिए पूरा दाम चुकाया. So Jesus became the model. तो यीशु हमारे लिए नमूना He बने. became he showed the relationship. उसने फिर एक रिश्ता He संबंध showed दिखाया, the revelation प्रकटीकरण दिया, and restoration पुनर्स्थापना दी and response. और प्रतिक्रिया. Then we ended with the response to the God's promise. और फिर प्रभु के जो प्रतिज्ञा है वो उसके प्रति हमें कैसे प्रतिक्रिया देना है वो कहकर हम अंत किया. So that's what I want to tell you. Only healing is not enough. You need the deliverance along with the healing. इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल चंगाई पाकर काफी नहीं है, लेकिन चंगाई के साथ में छुटकारा भी होना जरूरी If है. you have the promises of God, you need to agree with God. Then the promises of God will come to existence. अगर तुम प्रभु की प्रतिज्ञाओं को बोलते हो तो उसके वादों के साथ में तुम्हें सहमत होना जरूरी है, तभी ये सारी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए पूरी होंगी. Then I told you two things before I end. अंत करने से पहले मैंने 2 बातें बताई थी. Satan is waging a war to take back the authority which Jesus has given to each believer, each son of God.
देखो यीशु मसीह ने जो अधिकार हर एक विश्वासी के लिए दिया हुआ है, शैतान हमेशा उसका युद्ध होता है कि कैसे इस अधिकार को छीन ले। We got the inheritance from Jesus Christ. तो यीशु मसीह से हमने विरासत में पाई So है, Satan is waging the war और शैतान इसलिए हमेशा युद्ध to में है take the dominion back in his hands. क्योंकि वो प्रभुता को अपने हाथों में लेना चाहता And है। also Jesus expects us that he is seated in the heavenly places, so that we as a family, we as the children of God, we has to be seated with the heavenly places along with Jesus. तो यीशु मसीह पिता के साथ में स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, बैठे हुए हैं, और वही बात वो हमसे भी चाहते हैं कि हम भी यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठे। So I gave the introduction why we need the healing and deliverance. तो मैंने अभी परिचय कल दिखाया था कि कैसे क्यों हमें चंगाई और छुटकारा दोनों की जरूरत है। Hallelujah. Now today it's a very powerful thing. What I'm going to teach you is the healing ministry. आज मैं तुम्हें चंगाई की सेवकाई के बारे में How सिखाऊंगा। God introduced the healing ministry and why. तो परमेश्वर ने ये चंगाई के सेवकाई को क्यों दिया? You know, God created man to be whole and healthy. परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और चाहा कि वो परिपूर्ण रहे। So man created to function as a healthy being. तो इसीलिए मनुष्य एक अच्छे सेहतमंद व्यक्ति के रूप में कार्य That's करने what लगा था। God created man in three kinds: spirit, soul, and body. इसलिए मनुष्य ने परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और शरीर तीनों से जोड़कर That's what बनाया। Genesis chapter 2 verse 7 says. इसलिए उत्पत्ति का 2:7 कहता The है, Lord God formed man of the dust of the ground. तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। Now he formed the body अभी देखो उसने मनुष्य का शरीर को बनाया and he breathed into his nostrils. और उसके नथनों में श्वास डाला The spirit entered, और फिर आत्मा ने प्रवेश किया, right? And the breath of life came into him, और जीवन का श्वास उसके अंदर आया, and man become a living soul. और फिर मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. Now can you see the spirit, soul, and body here? क्या यहाँ पे दिख रहा है आत्मा, प्राण, शरीर तीनों भी? That's what man is created to function as a healthy being. इसलिए मनुष्य एक अच्छे सेहत में रहने के लिए प्रभु ने रचा है। Created the spirit. उसने आत्मा बनाया। How he created the spirit? आत्मा को कैसे रचा? He breathed into his nostrils, उसके नथनों में उसने फूंका, and he formed his body in his own hand, फिर अपने ही हाथों से शरीर का, देह का आकार and he दिया, created a soul, become a living soul. और फिर उसके लिए एक प्राण बनाया और वो जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. That is what the function God has done. तो परमेश्वर ने ये कार्य किया। Meaning God created man to be whole and healthy. परमेश्वर ने मनुष्य के वो इसीलिए रचा था कि वो अच्छे His सेहत soul में should बना be रहे, healthy. उसका प्राण सेहतमंद His रहे, spirit should be healthy. उसका आत्मा His body सेहतमंद should रहे, be healthy. उसका शरीर भी सेहतमंद But रहे। if you read in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, अगर तुम पहला थिस्सलुनीकियों का 5:33 पढ़ोगे, the Bible says, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Now can you see this? What God created in the beginning, in the end, when Christ comes in glory, He wants to preserve the spirit, soul, and body sanctified and blameless. देखो ये जो परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और शरीर को हमने आदि में देखा कैसे रचा है, और मसीह के आने के समय में भी वो चाहते कि हमारा आत्मा, प्राण और शरीर पूरी तरह से निर्दोष और सुरक्षित रहे। Let me give you a revelation. यहाँ पे प्रकटीकरण दूंगा। It is formed by the hand of God. परमेश्वर के हाथ से वो रचा हुआ He है, breathed into his nostrils. और उसके नथनों में उसने He फूंका, became a living being. और फिर वो एक जीवित प्राणी बना। Now in the end times, अभी अंतिम समय में God will sanctify this flesh परमेश्वर इस देह को शुद्ध करेगा as a whole spirit, और एक पूरी आत्मा के रूप में, whole soul,
पूरे संपूर्ण And the प्राण whole body will be preserved blameless. यानी और संपूर्ण शरीर देह जो है वो निर्दोष रहेगा। It started with the hand of God, it will end with the hand of God. प्रभु के हाथ से शुरू हुआ था, प्रभु के हाथ से ही खत्म In होगा। between there is a war, so I'm going to teach on that. और उसके बीच में एक युद्ध है, वो उसके बारे में भी मैं So listen to सिखाऊंगा। this. Before the fall of man, देखो, मनुष्य को गिरने से पहले man was secure in a sinless existence. तो जब कोई पाप नहीं था जगत में, तभी मनुष्य बहुत बड़ा सुरक्षित था। Before the fall, गिरने से पहले man was secure in a sinless existence. एक ऐसे जगत में था पाप जहाँ नहीं पे था। पाप नहीं था, मनुष्य के बहुत सुरक्षित था। And meaning where there was no decay of death. यानी वहां पे मृत्यु का कोई मृत्यु नहीं था। Amen. That means when God formed Adam and breathed his nostrils, the life, and he became a living soul, there was no sin. देखो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और उसके अंदर नथनों में जो है अपना जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बना, यानी वहां पर तभी कोई भी पाप के लिए जगह नहीं There था। was no decay of death or death. मृत्यु यानी सड़ा हुआ मृत्यु नहीं था। There was no decay for this body. यानी वो शरीर के लिए कोई सड़ाव नहीं था। But after the fall, लेकिन गिरने के बाद sin caused damage and disorder into the soul and to the body. तो ये पाप ने शरीर, प्राण और आत्मा में तीनों में जो है पूरे Now listen. डिसऑर्डर लाया। You know, it became all haywire. यानी पूरे सब गड़बड़ी आई। गड़बड़ी आ गई. Hallelujah. Okay. So the Bible says after the fall of Adam, बाइबल कहता है कि आदम के गिरने के now बाद listen, sin caused damage देखो, पाप ने जो है खराब किया सब, and brought the disorder. और उसके अंदर सब गड़बड़ी लाई। Hallelujah. And now if you read in Genesis chapter 4, अगर तुम उत्पत्ति का 4 पढ़ोगे, now because the sin entered, क्योंकि पाप ने प्रवेश किया, the murder thought entered in the heart of Cain. इसीलिए कैन के हृदय में वो हत्या की बात आई। You know, that's what Cain murders Abel. इसलिए कैन ने आबिल का हत्या Now की। you see the death came, अभी देखा कैसे मृत्यु आई, then the body was decayed. और फिर वो शरीर सड़ गया। So that is how the sin makes. तो पाप ऐसा करता When है। God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को there was रचा, no sin. कोई पाप He नहीं था। was in the place where there was sin not existing. वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे पाप बिल्कुल The मौजूद नहीं था। moment he cooperated with Satan, जैसे उसने शैतान के साथ में सहमत he हुआ, fell into sin. वो पाप में गिर गया। And the sin brought decay and disorder in life. और पाप ने उसके जीवन में पूरे तितर बितर कर दिया और वो डिसऑर्डर लाया। But if you read in Genesis chapter 5 verse 5, अगर तुम उत्पत्ति का 5:5 पढ़ोगे, now the Adam lived 930 years and he died, Bible says. बाइबल कहता है कि आदम जो है 930 वर्ष तक जिया और उसके बाद वो मर गया। Now that means in the Garden of Eden, the first creation died after 930 years. यानी अदन के वाटिका में जो पहली परमेश्वर की जो सृष्टि थी, रचना थी, वो 930 साल के वर्ष के बाद मर गया। Hallelujah. Can you see the death came? देख सकते हो कैसे मृत्यु आई। The sin brought disorder and decay in Adam's life. देखो, पाप ने उसके जीवन में डिसऑर्डर लाया, अव्यवस्था, डिसऑर्डर, विकार लाया। विकार लाया, अव्यवस्था लाया. You know, I want to tell you tonight, आज रात बताना चाहता हूँ, because Adam fell क्योंकि आदम गिरा in sin, पाप में, decay, disorder and death came. इसीलिए वो सड़ना आया, विकार आया और मृत्यु भी आई। Hallelujah. That's what Adam's age was supposed to be eternal, but he died because of sin. देखो, आदम को अनंत काल के लिए जीना चाहिए था, लेकिन वो पाप के कारण मृत्यु आई। If you read in Genesis chapter 6 verse 3, अगर उत्पत्ति के 6:3 and the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh. Now see,
Yet his days shall be 120 years. और यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर हुआ ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। So that means before the fall of a man was secured. देखो, मनुष्य के गिरने से पहले वो पूरी तरह से सुरक्षित But था। after the fall of man, it came to 930 years. Then it came to how much it is? 120। 120 years. और फिर मरने के उसके बाद जो है उसका उम्र जो है वो घटता गया और फिर 120 साल हुआ। Hallelujah. Now can you see here Adam generation age is reducing. अभी क्या आप देख सकते हो कि आदम की जो पीढ़ी थी उसका उम्र घटते जा रही Now है। you can see the death into the next generation. देखो, मृत्यु को अगले पीढ़ी हर पीढ़ी में देख सकते हैं। Cain kills Abel. कैन आबील की हत्या Now करता है। here we see the outworking of the spiritual death. देखो, यहाँ पे आत्मिक मृत्यु को देखते हैं। Hallelujah. The आत्मिकता में moment Adam sinned and died spiritually, देखो, आदम ने जिस क्षण पाप किया वो आत्मिक रूप से मर गया। and in the next generation, फिर अगली पीढ़ी में Cain murdered Abel. कैन ने आबील की हत्या कर Hallelujah. It won't stop there. वहीं पर नहीं रुका। Now, what are we talking? We are talking about healing, right? हम चंगाई के विषय में बोल First, रहे we हैं। need to learn why we need healing. हमें पहले सीखना है कि चंगाई क्यों चाहिए। Why there was no decay. यानी पहला कोई खराबी There नहीं was थी, no sickness. बीमारी नहीं There was थी, no soul ties. कोई जैविक बंधन भी नहीं There थे, was no sin at all. पाप बिल्कुल नहीं था। But because Adam cooperated with Satan, he lost the dominion and authority, and the sin and the decay and the disorder entered into his life. क्योंकि आदम ने पाप किया और पाप के कारण जो है उसने अपने अधिकार और प्रभुता को खो दिया और उसके कारण वो जो है बीमारी आई और सड़ना हुआ और जो है तितर बितर हो गया शरीर। God created man to be whole and healthy. परमेश्वर ने मनुष्य को रचा ताकि वो अच्छे सेहत में Now बना we हुआ रहे, need to परिपूर्ण रहे। understand what do you mean by healing or wholeness. तो आपको ये समझना जरूरी है चंगाई या परिपूर्णता का मतलब क्या है। Now there is a dictionary meaning for wholeness. अभी ये There is a- शब्दकोश में जो है उसका अर्थ है ये परिपूर्ण का मतलब। Wholeness means परिपूर्णता का मतलब है undivided यानी उसका कोई भाग नहीं or unbroken या जो टूटा हुआ नहीं है or completeness या पूरी तरह से संपूर्ण or totality with nothing wanting. यानी परिपूर्ण जिसमें कोई दूसरी चीज की आशा नहीं। Hallelujah. Or a state of robust and good health. या तो ऐसी स्थिति में जो पूरी तरह से अच्छे सेहतमंद में। Hallelujah. Now this is the meaning, dictionary meaning, wholeness, healing. डिक्शनरी ये जो शब्दकोश का अर्थ ये है। Hallelujah. If you say wholeness, अगर तुम कहोगे कि परिपूर्ण complete healing पूरी तरह से means चंगाई not undivided. यानी इसमें कोई भी शक नहीं कि कोई Healing will not be divided. यानी ये जो चंगाई है उसका कोई भाग नहीं है, अविभाजित नहीं When the है। healing comes, it is unbroken. जब चंगाई आती है तो बिल्कुल उसमें कोई टूटापन When the नहीं। healing comes, it is complete. जब चंगाई आती है वो पूरी तरह Or से when the आती है। healing comes, is totality. जब In चंगाई nothing wanting again. यानी चंगाई जब होती है तो परिपूर्णता साथ उसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं कि बाकी है। Or when I talk about healthy wholeness, जब मैं कहता हूँ कि अच्छे सेहत या परिपूर्ण, in the sight of God, देखो प्रभु के नजरों में to restore godly order which Adam has disordered it. यानी परमेश्वर के नजरों में जिस चीज को आदम ने विकार किया उसको फिर से स्थापित करना। God wants to restore godly order through you and me. तुम्हारे और मेरे द्वारा प्रभु चाहता है कि अच्छा विकार हो। Number 2, God wants to make whole and healthy. यानी प्रभु पूरी तरह से अच्छा परिपूर्ण बनाना चाहते हैं और अच्छे सेहत में। God wants to restore to health, to be in good condition.
प्रभु चाहता है कि सबका जो स्वस्थ है वो अच्छी तरह से रहे और सेहतमंद रहे। And He wants to replace turmoil and confusion with peace. तो अंदर की जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसे निकाल कर वो शांति देना And He चाहता wants है। to deal with the blockages that hinders the sanctification process. प्रभु के शुद्धिकरण में जितने भी अड़चन है उसे वो हटाना चाहता है। Hallelujah. Now, this is the meaning of healing. चंगाई का मतलब ये है, Healing means चंगाई का मतलब है to restore the godly order. परमेश्वर का जो पवित्र ये इच्छा है या ऑर्डर है, आज्ञा है, उसके अनुसार सब चीजों को बनाना है। Means there was, because Adam, when he was created, when he was formed, when God breathed into his nostrils, when he became a living being, it was sinless area. क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को रचा और उसके नथनों में अपनी श्वास फूकी, यानी वहां पे कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, सब परिपूर्ण था। Because if he fell in sin, क्योंकि वो पाप में गिरा, decay, disorder, death, age became reduced. इसीलिए तो सड़ना हुआ, उम्र की घटी हुई। Now God wants to bring the totality of healing. अभी प्रभु पूर्ण तरह से चंगाई देना God चाहते हैं। wants to make you wholeness. प्रभु चाहता है कि तुम परिपूर्ण हो जाएं। He wants to restore godly order in your life. तो प्रभु चाहता है कि तुम्हारे जीवन वो प्रभु की ईश्वर की जो व्यवस्था है उसे पूरी तरह से He आ जाए। wants to make you whole and healthy. वो चाहता है कि वो तुम अच्छे स्वस्थ में रहो और सेहतमंद रहो। God wants to restore health. प्रभु तुम्हारे सेहत को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते And God हैं। wants to restore your good condition. प्रभु तुम्हें अच्छी चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह से Now when I जिए। talk about healing, और जब मैं चंगाई की बात बोलता हूँ, He wants to replace the turmoil and confusion with peace. That is healing. चंगाई का मतलब है तुम्हारे अंदर की जितनी भी उतार चढ़ाव है और गड़बड़ियां हैं मन की, प्रभु वो सारी चीजों को निकाल कर उसके बदले में शांति देना When I चाहता say है। about healing, जब मैं चंगाई की बात बोलता He हूँ, wants to deal with the blockage for the healing. यानी जो चंगाई पाने के लिए जो अड़चन है उसे वो निकालना He चाहता wants है। to deal with the blockage that hinders the sanctification process. प्रभु का जो शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है उसके बीच में जो अड़चन आती है, प्रभु उसे निकालना चाहता We'll go है। to the next step. और हम नेक्स्ट स्टेप में If you जाएंगे। want to get the healing, अगर आप हीलिंग चंगाई or चाहते you हो, want to go through the healing ministry, अगर तुम चंगाई की सेवकाई में जाना चाहते you हो, need to understand the fruits and the roots. तो तुम्हें वो फल और उसके जड़ को समझना जरूरी Let है। me tell you, when a person gets an injury, जब कोई व्यक्ति को चोट लगती है any part, किसी भी भाग में, it can pain him, उसे दर्द होता है, but it is possible other parts also of your body is disturbed. लेकिन ऐसा भी होता है कि एक ही जगह पर अगर मार लगा है लेकिन बाकी के शरीर के दूसरे अंग में भी दर्द महसूस होता है। Suppose you have injury in the hand, सोचो हाथ में कुछ घाव लगा your है, mind is talking, तुम्हारा मन बोलता है, your soul is crying, तुम्हारा प्राण रोता है, and your spirit is disturbed. तुम्हारा आत्मा भी पूरा Your डिस्टर्ब, whole structure of body is restless. तो तुम्हारा शरीर का पूरा जो शरीर है वो व्याकुल हो जाता है। The other parts of the body, it is possible malfunction of the whole being. तो ऐसा शायद ऐसा भी होता है कि पूरे जो शरीर के अलग अलग भाग जो है वो ठीक से काम नहीं करता But है। you need to recognize the malfunction. तो तुम्हें ये समझना जरूरी है कि कौन सा भाग, क्यों ये सब गड़बड़ी हो रही है। If you want the healing, अगर तुम चंगाई or चाहते you हो, want to pray for somebody, अगर तुम किसी के लिए दुआ करना the चाहते हो, first thing you need to know which part of the being has been affected. तो तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि शरीर का कौन सा जो भाग है जिस पर असर हुआ है। And the whole body is disturbed. तो पूरा That means- शरीर में जो है डिस्टर्ब That's आता what, है। when you talk about healing, जब तुम चंगाई की बात बोलते हो, I'm not talking about only one part healing. Your hand was paining, your thumb was paining, prayed, healed. No. नहीं तुम्हारा हाथ दुख रहा था या उंगली दुख रही थी, नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ Jesus मैं। is talking about the wholeness of healing of your body. तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर के पूरे जो है परिपूर्णता के विषय You में need to recognize the problem.
तो तुम्हें वो समस्या जानना And जरूरी let me है। tell you, healing comes only through Jesus Christ who was bruised on the cross. तो वो चंगाई केवल यीशु मसीह के द्वारा आती है, जिसने क्रूस पर कोड़े खाए। Now listen, we can be sick हम बीमार हो सकते due to हैं, the problems we have in the soul. वो हमारे प्राण में समस्याओं के कारण। We can be sick हम बीमार हो सकते due to हैं, the problem we have in the spirit. हमारे आत्मा में कुछ समस्या है इसलिए We can be sick हम बीमार पड़ सकते due to हैं। the problem that we are facing on the body. हमारे शरीर पर कुछ समस्याओं के कारण, Or we can be sick even because of the generational curses. और या ऐसा भी हो सकता है कुछ पीढ़ियों से आने वाले शरापों के कारण कुछ बीमारी आती है। No, Jesus, everything won on the cross. That is the key. लेकिन यीशु मसीह ने सब चीजों पर जय पाया क्रूस पर, By- वही मुख्य बात By है। his stripes I am healed. उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो By गया his हूँ। blood my soul is cleansed. उसके लहू के द्वारा मेरा प्राण शुद्ध हो गया है। Hallelujah. I am filled with the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया I हूँ। am delivered from the generational मैं curses. पीढ़ियों से आने वाले श्रापों से मुक्त हो Now गया what हूँ। I'm talking to you is tonight, आज रात को क्या कहना चाहता हूँ? we can be sick due to the problems we have in the soul, spirit, body or generational bondages. देखो, बीमारी इसलिए आ सकती है क्योंकि शायद प्राण, आत्मा, शरीर या पीढ़ियों से आने वाले कुछ श्रापों के कारण आई है। You know, we need to recognize tonight. तो आज रात को उसे पहचानना है What are we हमें। learning? We are learning the healing ministry of Jesus. हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह की चंगाई की सेवकाई के When बारे I में। talk about the healing, it is a wholeness of healing to your spirit, soul and body. जब मैं चंगाई की बात बोलता हूँ, तुम्हारे पूर्ण यानी संपूर्ण प्राण, आत्मा और शरीर की चंगाई के So बारे में है। let's study about the nature of man tonight. आज रात को मनुष्य का स्वभाव God सीखेंगे। has made man a complex being. जटिल होना, Hallelujah. He's a complex being. बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्यक्ति है The मनुष्य। nature of man by looking तो into म- 3 areas: मनुष्य का जो हम 3 भागों में देख सकते हैं, body, शरीर, soul प्राण and spirit. और आत्मा। This is how he has made complex being. तो मनुष्य को ऐसे प्रभु ने बनाया है। Hallelujah. So nature, उसका if स्वभाव, you want to know the nature of a man, अगर एक मनुष्य का स्वभाव जानना चाहते you हो need to know in 3 areas: तो 3 क्षेत्र में जानना जरूरी body, है। शरीर, soul प्राण and spirit. और आत्मा। If you read, that's what in 1 Thessalonians 5:23, इसीलिए पहले तस्सलोनियों का 5:23 तुम पढ़ोगे। I've taken it as a base for you. मैंने ये तुम्हारे लिए एक नींव के रूप में लिया ये वचन। May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May you whole, spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Hallelujah. That means the nature of man in 3 areas: soul, spirit and body. यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, आत्मा, प्राण, शरीर। And God wants to make it blameless till he comes in glory. और प्रभु चाहता है कि उसकी महिमा में आने तक वो पूरी तरह से निर्दोष रहे। I can talk many things of the world. तो बहुत चीजें मैं बोल सकता No, हूँ, no. I want to take you through the process of the body. लेकिन मैं शरीर का जो प्रोसेस है उसमें तुम्हें ले जाना Later on, चाहूंगा। I'll talk on how this flesh is addicted to other kinds of things बाद में मैं बताऊंगा ये जो शरीर है बाकी की चीजों के लत as we में study कैसे longer गिरता है, time. जैसे हम ज्यादा शिक्षण करेंगे। Okay. Now let us study about the body. आइए शरीर के बारे में शिक्षण करेंगे। You all know man is made up of 3 things: आप जानते हैं कि मनुष्य 3 चीजों से बना हुआ है, soul, spirit, and body. Body, soul, Pra- and spirit. शरीर, आत्मा और प्राण। Okay. The body, we have a wonderful machine. ये जो शरीर है वो एक बहुत अच्छा मशीन जैसा No, है। no, no. The body that we have, it has a wonderful mission. हमारा जो शरीर है उसका अंदर एक अच्छा मशीन Or you है, can say the body we have is a wonderful mission. या तो जो शरीर हमारे पास है वो एक अच्छा मशीन है। Like other machine, it needs a driver. जैसे दूसरे जो मशीन रहते हैं उसको एक चलाने वाला व्यक्ति चाहिए, कोई भी मशीन। If you have a car,
अगर आपके पास कार है you need a driver. तो तुम्हें ड्राइवर की जरूरत है। Right? In the same way, this body is a machine. उसी रीति से ये जो शरीर है वो भी एक मशीन You जैसा know, है। to drive this machine, ये मशीन को चलाने के you लिए need a soul. तुम्हें प्राण की जरूरत है। Hallelujah. So, your machine, तो तुम्हारा जो मशीन है, who drives your machine? तो तुम्हारा मशीन को कौन Your चला रहा है? machine is driven by the soul. तुम्हारा मशीन जो है वो तुम्हारे प्राण उसे चला रहा है। The soul is the interference between the body and the spirit. तो ये जो प्राण जो है तुम्हारे आत्मा और शरीर के बीच में का एक ये है। Hallelujah. Think about, this is your machine. देखो ये तुम्हारा मशीन है, तुम्हारा प्राण। Hallelujah. Between the body and the spirit, देखो ये जो तुम्हारा देह है और आत्मा के बीच में, and there is a spirit, a soul. तो ये एक प्राण है। Now listen to this. This is your body. ये तुम्हारा शरीर है, This is your mission. ये तुम्हारा मशीन है शरीर, Hallelujah. And this is your spirit. और ये तुम्हारी आत्मा है। And you need between the soul, between the body and the spirit, you need a interference. तो ये जो शरीर और आत्मा के बीच में एक उनको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, That is called soul. उसे कहते हैं प्राण। Now this is soul. ये प्राण है। The soul is the interference between the body and spirit. अभी जो प्राण है वो दोनों के बीच में है, इंटरफियरेंस। Hallelujah. Now that is how you need to understand. You need a driver for your machine, that is called body. यानी तुम्हें एक ड्राइवर की जरूरत है तुम्हारे मशीन को चलाने के So that लिए, is already inside you. जो तुम्हारे अंदर पहले से ही है। If that driver messed up the way, अगर वो ड्राइवर जो है सीधे से नहीं चलाएगा, it will take you to hell. वो तुझे नरक ले जाएगा। If that driver is God fearing, अगर वो ड्राइवर प्रभु का भय मानने वाला ड्राइवर है, he will take you to heaven. वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। So he will make you blameless. तो वो तुम्हें निर्दोष बनाएगा। If that driver is a drunkard, अगर वो ड्राइवर सोचो कि if that driver is a liar, अगर वो झूठा है, if that driver is having all the addictions, अगर उसको सब गलत वासनाएं हैं, you know what happens? तो क्या होगा? Your body and your spirit is driven to sin. तो फिर तुम्हारा जो शरीर और तुम्हारी आत्मा पाप की ओर So जाएगा। there are certain things we need to understand. तो हमें कुछ चीजें जिसे समझना जरूरी The है। carnal part of a man is material. तो मनुष्य का जो सोच है, जो शारीरिक सोच है, वो बहुत ही यानी वो सांसारिक है। सांसारिक है. Hallelujah. The material part of a man is carnal. मनुष्य का जो एक भाग है वो शारीरिक है। Hallelujah. Now, if you read in Romans chapter 8 verse 6, अब अगर तू रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ोगे, for to be carnally minded is death. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु मृत्यु है। है. But to be spiritually minded is life and peace. परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति So that's what we need to deal, or we are dealing with the human spirit. अभी हम मनुष्य की आत्मा को No. निपट We are dealing with the human body. मनुष्य के शरीर से हम निपट रहे हैं। You know, when it is carnal, देखो जब ये शारीरिक होता है, when your soul is carnally minded, जब तुम्हारा जो प्राण है वो केवल शारीरिक रूप से सोचता है, there is a death to your physical body. तो तुम्हारे शरीर को जो है मृत्यु आती But है। your soul is spiritual, your driver is spiritual minded. लेकिन तुम्हारा जो प्राण है वो आत्मिक है। और जो मिशन को चलाता है वो आत्मिक रहेगा. जो तुम्हारा ड्राइवर है, जो आत्मा को चला रहा If है, is a spiritual minded life, अगर वो आत्मिक रूप से चल रहा है, there is peace. यानी शांति होगी। It's very simple way I'm putting to you. सिंपल सामान्य रूप से डाल रहा हूँ। That is one thing. In the we are learning about the body. हम अभी शरीर के विषय में शिक्षण Okay, कर how रहे हैं। body is getting decay to death. तो एक शरीर कैसे मृत्यु की ओर जाता है। Hallelujah. And the सड़ता second है। thing, if you notice, there are some people, they try to have the self healing by putting mulam to their heart. कुछ लोग हैं जो स्वयं को चंगाई देने की कोशिश करते, अपने ही दिल को अपन मुलाम डालते हैं। Hallelujah. Even they know that they are carnally walking,
वो जानते हैं कि वो कितने शारीरिक रूप से चल रहे हैं, but they want to do the self healing for themselves by comforting वो themselves. अपने आप को ही दिलासा देते हैं अपने आप की चंगाई के बारे And में। also, the body often reflects what is going on in the inner man. हमेशा शरीर जो है वो मनुष्य का अंदरी आत्मा जो अंदर से क्या बर्ताव करता है वो शरीर को बाहर से दिखाई If देता you are है। happy, अगर यदि तुम खुश हो अंदर body से is also happy. तो शरीर भी बाहर से खुश If दिखाई you're देता है। sad in the inside, अगर अंदर से दुखी हो your body reflects that. तो बाहर से शरीर भी के द्वारा दिखाई So what देगा। are we talking? We are talking, learning about the body. तो अभी हम क्या सीख रहे हैं शरीर के बारे This में। machine acts according to the inner driver. तो ये जो मशीन है जो शरीर है वो अंदर का जो ड्राइवर है उसके अनुसार चलता Your है। body often reflects what is going on the inner man. तो तुम्हारा शरीर ज्यादातर हमेशा तुम्हारे अंदर के जो अंदरूनी मनुष्य कैसा बर्ताव करता है उसके ऊपर निर्भरित If है। your inner man is happy, अगर तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य खुश है your machine will make everybody happy. तो तुम्हारा मशीन सबको खुश करेगा। If your inner man is very very sad, अगर अंदरूनी मनुष्य दुखी है this machine will make everybody sad. तो ये मशीन सबको दुखी बनाएगा। Hallelujah. That's what now let us learn about the human spirit. आइए सीखेंगे मनुष्य की आत्मा के बारे में। Hallelujah. I spoke about the body. अभी मैंने शरीर के बारे में बताया, Now let us learn the human spirit. अभी हम सीखेंगे मनुष्य की आत्मा। The human spirit is the part which we relate to God. ये मनुष्य की जो आत्मा वो है जो परमेश्वर के साथ में बातें करता है, That's रिश्ता why रखता I है। always say the spirit is from God. इसलिए मैं हमेशा कहता कि आत्मा परमेश्वर की ओर से है। John 4:24 says, यूहन्ना का 4:24 कहता है God is spirit, परमेश्वर आत्मा है and those who worship Him और जो उसकी आराधना करते हैं should not worship in the flesh, in the mind, in the शरीर inner में- man, but through the spirit. उसकी आराधना आत्मा में या शरीर में या मन में नहीं करना है लेकिन आत्मा से That's why करनी है। God is a spirit, इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर and आत्मा है। those who worship Him जो उसकी आराधना करते must हैं worship Him उसकी आराधना कर in ऐसी spirit करनी है, आत्मा में करनी and है in truth. और सत्य में Now करनी this है। is the key. यही वो Now बात है। human spirit always connected to God. ये मानवीय का जो मनुष्य की जो आत्मा है वो हमेशा ईश्वर के आत्मा से जुड़ा हुआ That's what है। there is a voice inside you. इसलिए तुम्हारे अंदर एक आवाज है, This is right, this is wrong. ये सही है वो गलत है। The soul will say this is wrong, this is right. प्राण कहेगा ये सही है But the spirit said that is wrong. लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहेगा वो गलत है, So because you came from God, क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से आए हो। your spirit makes a decision to say no for the things the soul is attracting. एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हें कुछ चीजों के लिए नहीं कहेगी जो तुम्हें प्राण जिस चीजों की ओर आकर्षित करना चाहेगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं Now है। one thing I want to tell you, our human spirit हमारी जो मनुष्य की आत्मा is intended by God to be fed. तो परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि उसको हम खिला सके। Hallelujah. It is fed by the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा से खिलाया जाता It है grows stronger और फिर वो मजबूत बनता है। as we mature in body. जैसे हम शरीर में मैच्योर हो जाते हैं, बढ़ How जाते we हैं, mature the body, जैसे शरीर बढ़ता जाता है in the same way, this spirit, वैसा ही आत्मा our भी, human spirit, हमारी मनुष्य की जो is आत्मा है intended by God. जो परमेश्वर ने इसीलिए रचा है। God feeds to your spirit. परमेश्वर तुम्हें खिलाता है या देता I was है saying- अपनी आत्मा के द्वारा। Childish spirit. क्या तुमने देखा है कि बचपना की You आत्मा, know, you don't, if you go to a child, it as a child, it is not mature. देखो एक बच्चे के पास तुम जाओगे तो बच्चा सियाना नहीं है, As बच्चे your का आत्मा body है। matures, जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ता है your spirit is also fed by God. तो वैसे तुम्हारी आत्मा भी प्रभु से खिलाता है Hallelujah. Also the soul. और प्राण की Okay. प्राण भी वही है। Let's read Luke chapter 1:80, how Jesus was growing. आइए लूका का पहला अध्याय 80. और 80 वचन। So the child grew and became strong in spirit. और वह बालक बढ़ता और आत्मा में Now listen. बलवंत हो गया। The child Jesus grew. यीशु मसीह बढ़ता गया, The child Jesus grew. यीशु मसीह बालक मसीह नहीं.
सॉरी child Jesus grew, यीशु जो बालक था वो बढ़ता गया became strong in spirit, और वो आत्मा में बलवंत होता गया and was in the desert till the day of his manifestation to Israel. और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक Okay. जंगल में रहा। Now, if you read in Luke 2:40, अगर लूका का 2:40 तुम पढ़ोगे, and the child grew and became strong in spirit and filled with wisdom, and the grace of God was upon him. See this? और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। देखो Isn't it so interesting? क्या दिलचस्प की बात नहीं है? Hallelujah. You know, I'm teaching you, I'm equipping you so that you can become strong in the spirit, soul, and body. मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम भी आत्मा, प्राण और शरीर में बलवंत हो जाओ। Here, can you see, as the child grew, he became strong in spirit, देखो जैसे ये बालक बढ़ता गया वो आत्मा में बलवंत हुआ filled with wisdom, और बुद्धि में परिपूर्ण, and the grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। What about you and me? तुम्हारा और मेरा क्या? How are we growing? हम कैसे बढ़ रहे Are हैं? we fed by the Spirit? हम क्या आत्मा से Is our खिलाए? is our human body, soul is fed by the Word of God? क्या हमारा मानव जो शरीर है वो परमेश्वर के वचन से खिलाया Now, हुआ what है? God is saying, if you want the complete healing, प्रभु कहता है यदि तुम्हें पूरी तरह से चंगाई you need चाहिए to deal with your human body. तो तुम्हारा जो मानव शरीर है उससे तुम्हें You निपटना need to है, deal with your spirit. तुम्हारे आत्मा से निपटना है। Now, how you can be dealing with the spirit? अपने आत्मा से तुम निपटोगे कैसे? You need to be strong in the spirit. तुम्हें आत्मा में बलवंत You होना need है, to grow in the spirit. आत्मा में तुम्हें बढ़ना You है need to fill with the wisdom in the spirit. और बुद्धि में तुम्हें परिपूर्ण होना है And you need the grace of God. Only grace और of God is परमेश्वर- not going to work. और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होना जरूरी The है। Bi- केवल परमेश्वर का No, 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 अनुग्रह no. नहीं काम The करेगा। Bible says, as the child grew, पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसे बालक बढ़ता गया he became strong in the spirit, तो वो आत्मा में बलवंत होता filled गया with the wisdom. और बुद्धि से And परिपूर्ण then हुआ the grace of God was upon him. और फिर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया। Okay, number 3. तीसरा, The function of the human spirit मनुष्य का जो मनुष्य की मानव आत्मा का जो कार्य है is primary to receive and communicate life to our body. उसका मुख्य उद्देश्य और काम यही है कि शरीर से जो है बातें करना, पाना और शरीर के साथ में रिश्ता Now रखना, listen, I'll put it कम्युनिकेट in a करना। very simple way. Your human spirit, तुम्हारा जो मनुष्य की आत्मा basically, it receives and communicate life to your body. वो पाता है और तुम्हारे शरीर को जो है जीवन देता है। That is the function of the human spirit. मनुष्य की आत्मा का वो एक कार्य है। You need to understand the difference between the spirit function, soul function, and body function. तो ये जरूरत है कि तुम इसे समझे कि मनुष्य का जो कार्य क्या है, आत्मा का क्या कार्य क्या है, शरीर और का, आत्मा का, आत्मा प्राण का कार्य क्या है, आपको समझना जरूरी जरूरी है। है। Okay, hallelujah. The time you understand this, जिस समय तुम इसे the समझोगे, moment you understand this, जैसे तुम इसे समझोगे, you will understand how to operate in the flesh, how to operate in the spirit, how to operate in the soul. तुम समझ जाओगे कि शरीर में कैसे कार्य करना है, आत्मा में कैसे कार्य करना है, प्राण में कैसे कार्य Your करना है। human spirit is designed तुम्हारा जो मानव आत्मा, मनुष्य का आत्मा इस रीति से बनाया हुआ to है receive and communicate life to your body. ताकि तुम्हारे शरीर के लिए तुम जीवन कैसे Now प्राप्त करे और उससे कम्युनिकेट करे। Only your spirit man speak to your body. केवल तुम्हारा आत्मिक मनुष्य तुम्हारा शरीर से बातें करेगा। Hallelujah. Come on, that's the beauty. You read James 2:26. I'll give you two scripture for this. James chapter 2 verse 26. याकूब का 2:26। For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. बिना आत्मा के शरीर मरा हुआ है, बिना आत्मा के शरीर जैसे मरा हुआ है, so faith without works is dead also. तो वैसे विश्वास भी कर्म बिना Now मरा listen, हुआ है। that means what God is trying to tell us. यानी प्रभु हमसे कहना क्या Your चाहते हैं? human spirit, तुम्हारा मनुष्य का जो आत्मा है, important, the basic thing to receive and communicate life to your body. तो उसका मुख्य काम है क्या है? तुम्हारे शरीर को जो है जीवन जो है देना है। जीवन बोलना है जीवन शरीर बोलना को। हालेलुया। कैसा?
without spirit, your body is dead. क्योंकि Listen. आत्मा के बिना तुम्हारा शरीर मरा हुआ है। Means without your spirit communicating life to your body, it is dead. तुम्हारी आत्मा अगर शरीर को जो है एक कम्युनिकेशन नहीं करेगी, संचार नहीं करेगी, तो वो मरा हुआ है। Why many people doesn't walk in the healings? बहुत लोग हैं चंगाई में क्यों नहीं Because चलते हैं? spirit man is not communicating to the body. How much ever you pray, they are not healed. देखो आत्मिक मनुष्य है वो शरीर के साथ में रिश्ता नहीं या बोल नहीं रहा है या विचार नहीं कर The रहा है। spirit man is not speaking to the flesh आत्मिक मनुष्य देह के साथ में संचार नहीं कर because रहा there is है, a connection lost. क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो टूट चुका Network है, चला गया है. नेटवर्क चला गया As है। long as there is no network from the spirit to the body, your cell phone is dead. जितना भी जैसे अगर आत्मा और शरीर के बीच में अगर नेटवर्क नहीं है तो तुम्हारा सेलफोन Your मरा हुआ है, cells in the body is dead. तुम्हारे शरीर के सेल मरे हुए हैं। That's what faith without works is dead also. इसलिए विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। What does it mean? उसका मतलब क्या Your है? spirit man should have faith in God. यानी तुम्हारा आत्मिक मनुष्य के अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास होना And जरूरी है, that faith comes from God to your spirit man. और वो विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है तुम्हारे And आत्मिक your मनुष्य के spirit man ऊपर। is not connected to God, doesn't receive the basic things from God. अगर तुम्हारा तुम्हारी जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से ये बातें को अगर ग्रहण नहीं करता है, You cannot communicate with your flesh. तो वही बात तुम तुम्हारे शरीर के साथ में संचार flesh नहीं is कर सकते। तुम्हारा शरीर फिर मरा हुआ Now, है। how many times a day you eat? According to the dietitian, every 2 hours you will eat. अगर डाइटिशियन के हिसाब से तुम्हें 2 घंटे खाना है तो तुम 2 घंटे खाते हो, हर 2 घंटे में। According to the circumstances of your family, routine timing, 3 times a day you eat. तुम्हारे परिवार के स्थितियों के अनुसार अगर 3 बार खाते हो तो 3 बार तुम खाओगे। But how much time you feed to your spirit man? लेकिन तुम्हारे आत्मिक मनुष्य को कितना खिलाते हो? Everybody is praying for the physical body to be healed. सब लोग प्रार्थना करते हैं कि शरीर में चंगाई आ जाए, And spirit is dead. और आत्मा मरा हुआ है। Spirit should receive the faith. आत्मा को विश्वास की जरूरत Your है। spirit is dead. यहाँ पे ये आत्मा मरा हुआ है, Faith without works is dead. तो विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। Meaning spirit doesn't receive the communication of God and communicate with the flesh. How can the healing take place? तो अगर आत्मा परमेश्वर से वो संचार नहीं पाता है और फिर वो अपने देह को नहीं देता है, तो फिर चंगाई कैसे हो सकती Now है? Luke chapter 23:46 quickly. अभी लूका का 23:46। When Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. लूका का 23:47। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर अपना प्राण छोड़ दिया। Hallelujah. Now we are talking about the human spirit. अभी हम मनुष्य की आत्मा Now के बारे listen, में the बोल- human spirit is gone. Jesus committed his spirit into the hands of the Lord, hands of the Father. यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, Body became dead. शरीर मर गया। Hallelujah. So that's what I'm saying. Human spirit is that part with which we relate to God. यानी इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य की जो आत्मा है वो भाग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ में एक Our रिलेशन। human spirit is intended by God to be fed and grow strong. तो हम परमेश्वर ने इसीलिए हमें रचा है ताकि वो उस आत्मा को हम भरे बढ़ाएं, और परमेश्वर की योजना वही है। Hallelujah. And also the human spirit, the basic thing is to receive the message from God and communicate life to your body. और ये मनुष्य की आत्मा का एक और काम है कि वो परमेश्वर की ओर से ग्रहण करे और इस शरीर को जीवन घोषित करे। That's what I'm telling. Live in the spirit. इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा में जियो। So another part of the human spirit is the function of the human spirit. मनुष्य की आत्मा का एक और कार्य The है, human spirit receives new birth.
और ये मनुष्य की आत्मा नया जन्म भी लेता है। Hallelujah. How? कैसे? John 3:16 says, योना 3:16 For कहता है, God so loved the world परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा that प्रेम he किया gave his only begotten Son Jesus Christ, कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे that दिया, whosoever believes in him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे should not perish but have everlasting life. वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। That means there is a new birth to the spirit. यानी आत्मा के लिए एक नया जन्म है। How? कैसे? He doesn't want us to perish because Adam fell in sin and brought the death and decay and disorder in life. तो उसने आदम ने पाप किया था, उसके कारण जो है हमारे जीवन में वो विकार आया, बीमारी आई और पाप आया। Hallelujah.